के बाद अगर कोई भी ग्लोबल लैंग्वेज है, then that's the language of food. चाहे कोई भी कंट्री हो या रिलीजन, food definitely binds us all together. Hello everyone, मैं हूँ नंदिनी वैद and I'd like to welcome you all to yet another fantastic journey into the world of food. Well, now it's time for us to go back into our school days. हम आपको लेके जाने वाले हैं एक ऐसे स्कूल में which is also a food studio. So if you want to step up on those culinary skills, let's go ahead and meet Rakhi Vaswani. Hi, I'm Chef Rakhi Vaswani of Palette Culinary Studio. Rakhi Vaswani is a name in the culinary world which needs no introduction. An expert in various international cuisines, वो एक successful entrepreneur भी हैं. उनका international concept पे based one of a kind culinary school and studio भी है. Palette Culinary Studio. हमारा स्टूडियो जो है इंडिया में इट्स द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट culinary स्कूल है. ये एक एकदम बेहतरीन सा कुकिंग स्कूल है जहाँ हमारे सारे वर्क स्टेशंस, हैंड्स ऑन वर्क स्टेशंस है स्टूडेंट्स के लिए. राखी के स्टूडियो को लॉन्च किया बॉलीवुड डीवा मलाइका अरोरा खान ने. इंडियन स्टाइल से हटकर कुछ अलग करने की चाह शेफ राखी की पहले से ही एम्बिशन थी. इंटरनेशनल स्टाइल एंड कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना वाज द मेन थॉट बिहाइंड ओपनिंग पैलेट कुलिनरी स्टूडियो. इस स्टूडियो को ओपन करने में उनके हस्बैंड के साथ उनके बच्चों ने भी काफी सपोर्ट किया. So the kids, pushed me again and said, you must start again, mom, and why have you stopped? So that's when I told my husband that if we do start, if I'm starting, I don't want to do it from home. No one wants to go to someone's house and learn. You want a nice setup. शेफ राखी ने भी अपने स्ट्रगलिंग डेज में किसी भी तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी. इनफैक्ट वो अपने नेबर्स के घर जाकर उनकी रेसिपीज को लर्न और एंजॉय करती थी. I started at the age of 11. So I used to love cooking and हमेशा किचन में जाती थी. मॉम का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, but I used to go in the building to every auntie's house. मेरे neighbors, मेरे aunts, सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती थी. मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग कुछ पहले नहीं ली थी इनफैक्ट. So I was very self-taught. शुरुआत के दिनों में उन्हें भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा. एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उन्होंने सब छोड़कर अपनी फैमिली और अपने बच्चों को प्रायोरिटीज दी. पर कहते हैं ना कि where there's a will, there's a way. धीरे धीरे शेफ राखी वासवानी became a very well-known name in the food world. राखी वासवानी के स्टूडेंट्स रेंज फ्रॉम स्मॉल किड्स टू सीनियर सिटीजन्स. इवन सेलेब्स ने भी राखी वासवानी के culinary स्कूल से काफी कुछ सीखा है. We have students from the age of 5-year-olds to 80-year-olds. We have housewives, young girls, preteens, homemakers, celebrity clients who are absolutely down to earth and really sweet. ट्रैवलिंग का शौक रखने वाली शेफ राखी का ये कहना है कि किचन उनकी सबसे फेवरेट जगह है. सिखाने के साथ साथ स्टूडियो में फूड और इंग्रेडिएंट्स के बारे में नॉलेज देना एक उनकी स्टूडियो की USP है. I every month like to go to a new destination. वहाँ की लोकल क्या है, डिशेस क्या हैं, उधर होटल्स में जाके, शेफ्स में, किचन्स में जाकर. किचन इज माई फेवरेट प्लेस. तो देयर इज नॉट अ सिंगल किचन जिसको मैंने स्पेयर किया. So I don't hide anything and I love teaching. I could be sick with 104 temperature, but if you give me a class full of students, I will be absolutely fine. I call Palette Culinary Studio my third baby. The more you share, the more you learn. अपग्रेडेशन को इम्पोर्टेंस देने वाली शेफ राखी ने अपनी सेकंड इनिंग्स में कुछ इंटरनेशनल क्विजीन्स के बारे में थोड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद अपने नए स्टूडियो पैलेट की शुरुआत की. The concept of Palette Culinary Studio. Palette is actually your palate, what you eat, and even the colors of every cuisine. I went traveling, I went, to Dubai, I went to London, and मैंने सारे काफ़ी courses कर लिए and मैंने 10-12 classes शुरू कर लिए.
which पहले का knowledge तो था ही, but you know if you're coming back into the industry 7 years के बाद, the trends have changed, so you have to upgrade yourself. I started with only 10 workshops and now I have more than 100. स्टूडियो में बच्चों की मास्टर शेफ किड पार्टीज भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। So we start from 5-year-olds. That's a master chef competition concept, the birthday celebrating, where you come and you learn how to cook yourself and eat that. Enjoy the fruits of your own labor. Literally हमारा एक इंटरव्यू आया था कि you can put your hand anywhere on the map and you'll have a class with us. So we try to cover up every cuisine. Location: ground floor, Sarvodaya Cooperative Housing Society, 7 Juhu Road, plot number 28, opposite Society Stores, behind SBI Bank, Santa Cruz West, Mumbai. Well, that really is a wonderful way of discovering the joy of cooking. It's time for me to take a short break. I have a lot more coming up, so stay tuned. Welcome back after the break. They say that one good book equals to 100 friends, whereas one good cookbook equals to 100 recipes. तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं एक ऐसे book launch पे which was graced by a great culinary expert. Have a look. इस साल मेरे इंडस्ट्री में 15 years हो गए। I started out as a food writer. I grew into a food stylist. I became a food consultant, and I now have also got my own studio, which is APB Cook Studio. From being one of the pioneers of food blog to starting up a culinary studio, Rushina Munshaw Ghildial has definitely come a long way. और अब उन्होंने अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू किया है by launching her own cookbook. The name of my book is A Pinch of This, A Handful of That. कोई भी बुजुर्ग जो कुक करता है आपको रेसिपी सिखाता है, बोलेंगे एक हाथ भर के डाल दो या एक मुट्ठी भर के ये डालो, एक चिमटी भर के ये डालो, तो उस कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। रिसेंटली इस लॉन्च के वक्त रुशीना ने अपने नए बुक के बारे में इनसाइट्स दी। इस कुक बुक में सिर्फ माउथ वाटरिंग रेसिपीज ही नहीं बल्कि उसके पीछे की स्टोरीज भी इंक्लूड की हुई हैं। एक चैप्टर इसमें मेरी दादी पे है, उनको प्रिजर्विंग और पिकलिंग का बड़ा शौक था। फिर एक चैप्टर इसमें मेरी नानी के बारे में। शी क्रिएटेड अ फुल कॉन्टिनेंटल मील, टोमेटो सूप, बेक बीन्स एंड टोस्ट, मैकरोनी, made in a pressure cooker. It starts from my grandmother's, then it talks about my mother, and each of them I've inherited something from. I didn't initially start with the plan of writing a book. I just started with the plan of writing down my memories. I wrote a couple of blog posts on my blog and I realized कि मेरी life की जितने भी important moments हैं या जितने भी important लोग हैं, I have an association to them with food. I pitched it in a book pitch competition. So that I conceptualized in half an hour and I put it together and sent it in, and it won. The concept was selected. So that's where it started from. रुशीना का ये भी कहना है कि हर कोई रेसिपीज और उनके पीछे की स्टोरी से कनेक्ट कर सकता है। There's so much information being thrown at us that the information that comes with a story that connects you to something personally always stands out. बुक में कुछ ऐसी रेसिपीज भी हैं जो उनके मुताबिक किसी फूड ब्लॉग या इंटरनेट पर भी अवेलेबल नहीं हैं। बहुत सारी रेसिपीज हैं जो मेरी रेसिपीज हैं या मेरी मॉम की रेसिपीज हैं जो आपको नहीं मिलेंगी कोई गूगल करने पे, और ऐसी भी रेसिपीज हैं जो हमारी फैमिली में एक स्पेसिफिक तरीके से बनती है, तो उनको ट्राई टेस्ट करके हमने इसमें डाला है। Roshibua makes lovely food.
I'm hoping a lot of food stories which will be interesting, a lot of food histories which will be even more interesting, and of course a lot of recipes. Culture that she's preserving and passing on and encouraging people to have more interest in cooking, preserving the traditions in the family. I think in this fast life today it's very important, so I wish her the very best. May she write many more books. इस कुकबुक में 125 रेसिपीज हैं, जिसमें आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरह की डेलिकेसीज मिल जाएंगी. So next time you're willing to cook different cuisines from all over the world in your kitchen, you should definitely buy this book. Now it's time for us to try out some new flavors across the city. Brijwasi is one of the sweet shops which is famous across India. हाल ही में उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट खोला है जिसकी स्पेशलिटी है राजस्थानी एंड मारवाड़ी फ्लेवर्स. Let's go and have a look in our next segment, Flavor Fiesta. ब्रिजवासी इंडिया में एक आइकॉनिक नाम है स्वीट्स और डिजर्ट्स के मामले में, पर अब ब्रिजवासी ने एक और लैंडमार्क अचीव कर लिया है विद द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेस्टोरेंट माखन. बेसिकली हम लोग तो हलवाई हैं. एक विचार आया कि मिठाई के साथ साथ में भोजन का भी प्रोविजन होना बहुत जरूरी है. माखन हमारा एक नया वेंचर रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन. ब्रिजवासी करीबन 68 साल पहले एक्चुअली स्टार्टेड एज अ कन्वेंशनल इंडियन रेस्टोरेंट व्हिच वाज अ टिपिकल भोजनालय. हमारे पिताजी ने और दादाजी ने 1946 में सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो भोजनालय से ही शुरू की थी. As time progressed, ब्रिजवासी की स्वीट्स उनके फूड से ज्यादा फेमस हो गयी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बंद करके सिर्फ स्वीट्स और डिजर्ट्स पे कंसंट्रेट किया. प्योर वेजिटेरियन और ऑथेंटिक इंडियन थाली के साथ ही कई वैरायटीज आपको इस रेस्टोरेंट में मिलेंगी. जो चीजें लोगों को घर में तो मिलती हैं लेकिन बाहर आप जाके देखेंगे तो नहीं मिलती है, हम उन चीजों को लाना चाहते हैं. वी हैव ट्रेडिशनल एथनिक जलजीरा, एक हमारी छाछ है, मिर्ची बड़ा, वी हैव गॉट अनियन कचौरी, दिल्ली की चाट रखी है, खस्ता पापड़ी चाट. राजस्थान के आइटम ले लीजिए, दाल बाटी चूरमा है, बाजरे की रोटी है, खिचड़ी है. गुजराती डिशेज में भी ले लीजिए आप, थोड़ा सा ऊंधिया है, आपका हंडवो है. 16th of December 2013 को शुरू हुआ ये रेस्टोरेंट काफी कम समय में ही मुंबई के कालबा देवी एरिया में एक पॉपुलर फूड स्पॉट बन चुका है. USP of माखन रेस्टोरेंट इज मेनली आवर फूड. हमारी किचन भी बहुत ही साफ सुथरी और स्टार होटलों की जो है उस टाइप की बनी हुई है. हमने बड़े बेसिक वार्म फूड कलर्स का डेकोर रखा है. येलोज हैं, रेड्स हैं. These are colors like lilac which is on the chair. I mean, these are all colors which come from Rajasthan and Gujarat. These are all frames of old matchboxes that we have picked up from, from around the country. ब्रिजवासी और उनका नया वेंचर माखन, इन दोनों नामों के पीछे भी एक अलग स्टोरी है जो अपने ट्रेडिशन और रूट से जुड़ी है. ब्रिजवासी एक सिंबॉलिक नाम है. जो हमारे परदादा और दादाजी हैं वो मथुरा में ब्रिज के रहने वाले हैं, तो ब्रिज के वासी जो मथुरा से बम्बई आए, ब्रिजवासी. कीपिंग द फैक्ट कि हमारे रूट्स मथुरा से आए हैं और जो खाना भी हम दे रहे हैं ट्रेडिशनल इंडियन भोजन है, तो वी थॉट कि व्हाट बेटर देन मक्खन, जो आपके खाने के साथ आप लोगे ही लोगे. जो हमारे स्टाफ हैं, दे ग्रीट देम एंड ट्रीट देम लाइक दे आर कमिंग टू देयर हाउस. हमारा कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में आए तो उनको ऐसा मत महसूस होने दीजिए कि भाई वो गेस्ट है, अतिथि है पर अपने घर आया है. ब्रिजवासी, who currently leads sweets shop culture in India, चाहते हैं कि माखन को मुंबई के डिफरेंट एरियाज और इंडिया के और शहरों में इंट्रोड्यूस करके चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स के ट्रेंड को आगे बढ़ाएं. फ्यूचर प्लान में यही है कि ये हमारा फर्स्ट वेंचर है. इसके आगे हम धीरे धीरे कोशिश यही करना चाहते हैं कि अलग अलग मुंबई की टेरिटरीज में अलग अलग रेस्टोरेंट, इसी तरह के वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोले जाएं. माखन की सक्सेस की कंसिस्टेंसी वक्त ही बताएगा, पर हमारी विशेस ब्रिजवासीज के साथ हमेशा ही रहेंगी. मैं यही माखन में कई बार आ चुका हूँ.
गट्टे की सब्जी इज माय फेवरेट। मैंने यहाँ पे गट्टे की सब्जी ट्राई की है, पाव भाजी ट्राई की है। तंसक दाल खाने आता हूँ, उनका गाजर का हलवा भी बहुत बढ़िया होता है। बाकी जगहों से काफी अच्छा है। इन दिस एरिया आई थिंक द मोस्ट clean and hygienic place that I could ever find. I go to an Indian restaurant, I only order for paneer. I get a lot of variety over here, so that's the reason I'd come here over other places. ये अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। Flavors are brilliant. Like you don't get to eat such authentic Rajasthani flavors anywhere. मक्खन बाय ब्रिजवासी आपको सर्व करता है राजस्थानी खाना। यहाँ के टाइमिंग्स हैं 12 noon to 11 PM। ओवरऑल हम इस जगह को देंगे फूड के लिए 4 on 5, एम्बियंस के लिए 3.5 on 5 और सर्विस के लिए 4 on 5। Wow, that was truly wonderful. So, Agli Bari, if you're in the mood to try out some different flavors, you should definitely visit Makhan. It's time for me to take a quick break, but I'll be back with a lot more coming up on the other side. Welcome back to the world of food. अब जिस next food joint पर हम आपको लेके जाने वाले हैं, that is more than a century old. और वहाँ की जो delicacy है, वो यकीनन आपके मुंह में पानी ले आएगी। बादशाह को चालू होने को 109 साल हो गए अभी, और जब से ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, खुदा की मेहरबानी है। Keep coming to Bacha and keep carrying the name on. Colorful, appealing, sweet, chilling. These all sum up just one dessert, and that's Faluda. मेरा नाम यास्मीन अस्फी ईरानी है। मेरे फादर ने ये दुकान शुरू किया था। 109 साल हो गए अभी। Located opposite Crawford Market since 1905, बादशाह अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। Started by Mr. Mirwan Jahangir Irani, who is basically from Iran and currently run by his daughter Yasmin Asfi Irani, ये अपनी शुरुआत के दिनों में एक छोटा सा स्नैक जॉइंट था। मेरे पिताजी वो ईरान से आए थे, तो वो एक बेराम नाम के आदमी थे, उनके पास काम कर रहे थे, और वो बहुत बड़े दिल के थे, सबको खिलाते पिलाते थे, तो सब उनका नाम बोलते थे बेराम बादशाह, और मेरे फादर को वो नाम अपील किया, इसीलिए उन्होंने फिर बादशाह कोल्ड ड्रिंक्स शुरू किया। डिलीशियस। इस सेंचुरी ओल्ड स्नैक पॉइंट की यही खास बात है कि इन्होंने अपना मेन्यू सिंपल और फ्लेवर ओरिएंटेड रखा हुआ है। सालों से हमारी क्वालिटी जो थी वही है, एंड इन द सेकंड प्लेस इट्स द लोकेशन आल्सो। पर फालूदा की बात करें, कई और फालूदा के साथ यहाँ का रॉयल फालूदा इज वन टू डाई फॉर। Our famous is Royal Faluda. There are so many other types also, but Royal सबसे जास्ती मशहूर है। Favorite Royal Faluda? Royal Faluda. Royal Faluda. Royal Faluda. Royal Faluda. क्योंकि इसका टेस्ट और किधर मिलता ही नहीं। इसका टेस्ट ही अपना है। I also prefer Royal. Of course there were ups and downs, वो तो हर एक धंधे में होता है, पर तो भी अच्छी तरह से आगे गया। जब ये बड़ी दुकान शुरू की तभी तो बहुत तकलीफें आई बीच में, लेकिन मेरे हस्बैंड और पिताजी ने मिलके सब वो हर्डल्स दूर किए, एंड सिंस देन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छी तरह से सब चल रहा है। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट तो अच्छा देखना ही पड़ता है, अपना फूड उसका क्वालिटी वो तो सब अच्छा रखना ही पड़ता है, तो जो होता है, नहीं तो फिर धंधा नहीं चलेगा अच्छी तरह से और नाम भी नहीं रहेगा। It was all on its own by the good food that we serve. That's the only, दूसरा कुछ प्रमोशन तो कुछ था नहीं, पहले के जमाने में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो अभी सब नया निकला है। पहले तो अच्छा था, पर पहले से मैं बोली नहीं, क्वालिटी वाइज एंड द लोकेशन बोथ काउंट्स।
It's Badshai, so it's royal, naturally. यास्मीन की ग्रैंड डॉटर बनफशे पशुतिनजादे से जानते हैं कि इस जॉइंट को लेकर इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। I think what we have for now is doing really well, so we don't want to touch that. But in the future, if there is a need for it and there is a demand for it, then we might. आगे ने आगे बढ़ता ही रहेगा, वो जो हमारी इच्छा है. There has to be no end to it, like it has to go on. And the future generation will also keep it. दिल्ली जो है, मैं 45 साल से आती हूँ। मैं बहुत सालों से आ रही हूँ। मैं बेंगलोर से आई हूँ। 50 साल हो गया। जब भी आता हूँ तो इधर होके जाता हूँ। कभी भी जब भी आवे यहाँ पर जरूर यही ड्रिंक लेते हैं। टेस्ट और क्वालिटी सर्विस सब कुछ अच्छा है, इसीलिए आते हैं। और किधर भी खाते इसका जैसा फालूदा नहीं है। यहाँ आते तभी कभी ऐसे ही नहीं जाते, यहाँ खा के पी के ही जाता है। जब भी मैं आती हूँ बॉम्बे तो बादशाह को छोड़ती नहीं हूँ। मुझे फालूदा बहुत पसंद है और जब भी आती हूँ मैं यहाँ पे फालूदा खा के जाती हूँ। जो एज इट इज पहले का जो टेस्ट है वही है। आज 4th जनरेशन इस एम्पायर को सक्सेसफुली हैंडल कर रहे हैं। हम इसी विश के साथ साइन ऑफ करते हैं कि बादशाह की बादशाही इसी तरह कायम रहे। बादशाह फेमस है अपने स्ट्रीट फूड, डिजर्ट्स और जूसेस के लिए। यहाँ के मस्ट हैव्स हैं रॉयल फलूदा, कुल्फी फलूदा, पाव भाजी, सेव पूरी। ओवरऑल हम इस रेस्टोरेंट को देंगे फूड के लिए 4 on 5, एम्बियंस के लिए 3.5 on 5 और सर्विस के लिए 4 on 5। So with that, we end yet another mouth-watering episode. I hope you enjoyed it. Do write in to us at wof@znetwork.com, and also don't forget to follow us on Facebook. Until next time, this is Nandini taking your leave from the world of food. Hi, I'm Chef Rakhi Vaswani of Palette Culinary Studio. I started out as a food writer. I grew into a food stylist. I became a food consultant, and I now have also got my own studio, which is APB Cook Studio. हम लोग तो हलवाई हैं। माखन हमारा एक नया वेंचर रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन। Keep coming to Badshah and keep carrying the name on. Yeah.